We now look at the financial leverage. I'm sure friends, based on our discussion of last 3 days and also of today, one thing which has definitely must have sunk with every one of you, that financial leverage is something which is very critical for any business. Because what is financial leverage in the first place? The financial leverage का मतलब है to borrow. So अगर एक कंपनी फंड्स बोरो करती है और बोरोड कैपिटल के बेसिस पर अपने बिजनेस को चलाती है, दैट मीन्स इट इज अ फाइनेंशियली लेवरेज कंपनी. ऑफ कोर्स वी ऑल अंडरस्टैंड नो कंपनी इन द होल वर्ल्ड can ever run a business only by virtue of borrowed capital. The promoters, the owners have to put some money from their pocket, which is known as equity. So in addition to equity, it is always advisable, especially when the market conditions are good, that a company should borrow, because borrowing has got many benefits. As I was telling you, the borrowing has got 14, 15, 16 benefits. तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि why people borrow in business. So a lot of people think that people businesses borrow money because they do not have funds. That is why they borrow. And let me tell you friends, it is not so at all. So it is not that the businesses borrow money because they do not have funds. They have all the funds available for them. Whatever they want, they have all the funds available. But they would not like to use all the funds in one project. They would like to use their funds for investing in multiple projects and supplement the funding or financing through the borrowed capital. So that is the answer to question number 1. Why do businesses borrow? Remember, businesses do not borrow because they do not have money. They borrow because borrowing has got many benefits. But remember the rider. The rider is borrowing is good only when the market conditions are good. Borrowing is good only when the economy is doing well. If economy is not doing well, if the market conditions are bad, then borrowing is not advisable. In that case, forget the borrowing. What is advisable is to repay the borrowings that you have and reduce the burden on your EBITDA, on your cash operating profit. Reduce the burden of interest on your EBITDA, that is your cash operating profit. Now second question, आप सभी को मालूम है अर्निंग पर शेयर क्या है. यू नो व्हाट इज अर्निंग पर शेयर? अर्निंग पर शेयर का मतलब है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ द कंपनी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और नेट प्रॉफिट और नेट इनकम, व्हाटएवर नेम यू कॉल इट, ऑल मीन द सेम थिंग. तो जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, अगर आप उसको उस कंपनी के जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं उससे डिवाइड करोगे तो वो जो आउटकम आएगा, वो जो फिगर आएगा, दैट इज अर्निंग पर शेयर. एंड फ्रेंड्स प्लीज रिमेंबर, ये अर्निंग पर शेयर का जो फिगर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये इतना इंपॉर्टेंट है कि पूरी दुनिया में विदाउट एनी एक्सेप्शन, आई एम टेलिंग यू, पूरी दुनिया में द CEOs, द टॉप मैनेजमेंट, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, द प्रमोटर्स, द ओनर्स, एवरीबडी is driven by one single number, and that is EPS, earning per share. तो हर CEO का, हर CFO का, हर MD का, हर बोर्ड का यही मिशन रहता है कि किस तरह से हमारी कंपनी की अर्निंग पर शेयर को बढ़ाया जाए. एंड रिमेंबर, अगर एक कंपनी की अर्निंग पर शेयर बढ़ रही है तो सीधी सी बात है, अर्निंग पर शेयर कब बढ़ेगी? अर्निंग पर शेयर तब बढ़ेगी जब वो कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कर रही है. और अगर वो कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कर रही है तो इसका मतलब कंपनी की अर्निंग पर शेयर बढ़ रही है. अब ध्यान से सुनिए, अगर कंपनी की अर्निंग पर शेयर बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उस कंपनी की मार्केट प्राइस और the price of the share on the stock exchange will go up. तो EPS ऊपर जाएगी, मार्केट प्राइस ऊपर जाएगी, मार्केट प्राइस ऊपर जाएगी, कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन ऊपर जाएगी, और कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन ऊपर जाएगी, इसका मतलब जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ उतनी बढ़ जाएगी. सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ earning per share. And please remember, everybody across the globe, all the top management are always driven by the earning per share. तो और बहुत दुनिया में बहुत सारी जगह पे, अमेरिका में, यूरोप में, बहुत सारी जगह पे जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, their bonuses are linked with the earning per share. So जितना EPS बढ़ेगा उतना ज्यादा उनको बोनस मिलेगा. So they have a direct incentive to ensure that the EPS increases. And obviously, why the owners or the promoters or the investors would give higher bonus to these CEOs or CFOs when the EPS is going up? Because when the EPS is going up, their own wealth is also
increasing. So when their wealth is increasing, they do not mind to reward the executives who are helping increasing the EPS of a company. So therefore friends, the second question is it possible to increase earning per share of a company without any change in the operating profit? यानी कि उसका EBIT तो जो है जितना कि उतना ही है, लेकिन क्या बिना EBIT को बदले, without doing anything to change the EBIT, is it possible to increase the earning per share? And friends, the answer of course is yes. How does it happen? Let us see it together. तो एक छोटा सा केस देता हूं मैं आपको. मैं चाहूंगा कि आप इस केस पे इंडिविजुअली काम करें. सो ये एक छोटा सा एक कैपेक्स का प्रपोजल है, एक कंपनी का नया प्रपोजल है. और वो प्रपोजल क्या है? वो प्रपोजल ये है कि एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल बिजनेस है विद सर्टेनिटी ऑफ 30% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. यानी कि somebody is coming to you with a business proposal एंड वो आपको बोल रहा है कि सर ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये प्लांट है, ये इतना इन्वेस्टमेंट है और आप इसमें इस इन्वेस्टमेंट आप करिए, आपको 30% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पक्का है. 100% आपको 30% का ROI इस पे मिलने ही वाला है. दैट इज नंबर 1. नंबर 2, ही इज सेइंग दैट देयर इज नो ऑपरेशनल रिस्क. यानी कि 30% का आपको ROI मिलेगा, इसकी गारंटी है. मतलब उसमें कोई ऑपरेशनल रिस्क है ही नहीं कि मतलब कि डिमांड कम होगी, सप्लाई कम होगी, रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. एवरीथिंग इज श्योर एंड सर्टेन. 100% नो ऑपरेशनल रिस्क, 30% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज अश्योर्ड. द प्रोजेक्ट कॉस्ट इज $300 मिलियन, यानी कि $300 मिलियन का इन्वेस्टमेंट उसमें करना है. अब $300 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे और अगर ROI 30% की है तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट $90 मिलियन का हो गया. सीधी सी बात है. सो 30% ऑफ $300 मिलियन बिकम्स $90 मिलियन एंड दैट इज योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिस प्रोजेक्ट विल अर्न फॉर यू. अब टैक्स रेट ऑफ कोर्स, अगर आप प्रॉफिट कमाएंगे तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा. सी टैक्स रेट इन दिस केस इज 40%. अगर आपको ये प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए अगर आपको बोरो करना है तो आप बोरो कर सकते हैं. एंड वो जो बोरो आप करेंगे वो आपको डेट मिलेगा एट द रेट ऑफ 10%. सो 10% ऑफ इंटरेस्ट भर के आपको बोरो लोन मिल सकता है. और ये आपके हाथ में है कि आपको बोरो करना है कि नहीं करना है, या आपको पूरा पैसा अपनी जेब से डालना है या आधा करना है, वो सब आपके हाथ में है. दैट्स योर चॉइस. ऑब्वियसली अगर आप इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे विच यू विल हैव टू, तो जो फेस वैल्यू है इक्विटी शेयर का वो $1 का होगा. तो ये आपका पूरा प्रोजेक्ट प्रपोजल है. अब ये जो ओनर हैं इनको ये प्रपोजल बड़ा अच्छा लगा. इनको लगा यार ये तो बहुत बढ़िया चीज है, ये तो जबरदस्त है. $300 मिलियन लगाऊंगा, $90 मिलियन का मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा, ये तो फैंटास्टिक है. तो उनके मन में आया कि यार ये मैं किसी और को क्यों लेके आऊं बीच में, मैं पूरा पैसा मेरी जेब से लगा देता हूं और सारा प्रॉफिट मेरी जेब में आएगा. तो एक तो उनके पास में ये ऑप्शन था. उन्होंने पहले ये सोचा कि $300 मिलियन का पूरा इन्वेस्टमेंट मैं इक्विटी में डाल दूंगा मेरी तरफ से और $90 मिलियन का पूरा प्रॉफिट टैक्स घटाने के बाद में मुझे मिलेगा. पर उनको मालूम पड़ा कि नहीं यार, मेरे पास में $300 मिलियन तो है ही नहीं, मेरे पास में तो ओनली $150 मिलियन हैं. सो देन व्हाट ही सेड, ऑल राइट, $150 मिलियन है तो $150 मिलियन डालूंगा, बाकी का $150 मिलियन मेरा एक फ्रेंड है उसको बोलता हूँ कि तू भी डाल दे क्योंकि प्रोजेक्ट अच्छा है, तेरा भी फायदा हो जाएगा. So उन्होंने he spoke to his friend. So now in the second option, the first option remember is what? The first option is that the promoter is going to put 100% equity from his pocket. That is one option. Second option is उसके पास में पैसा नहीं है. He has only $150 million. So the promoter is going to put $150 million from his pocket and the balance $150 million will come from his friend as equity. So दोनों ही equity डालेंगे लेकिन $150 million each. That is the second option. तीसरा ऑप्शन उनको किसी ने बताया, अरे यार तुम्हारे पास में पूरा पैसा नहीं है समझो, तो क्यों तुम किसी दोस्त को लेके आ रहे हो, उसके बजाय ऐसा करो ना, $300 मिलियन का प्रोजेक्ट कॉस्ट है, $100 मिलियन तुम्हारी जेब से डालो, $200 मिलियन का किसी बैंक से लोन ले लो. सो इस तरह से $300 मिलियन डालो और $300 मिलियन डाल के प्रोजेक्ट को चालू करो. तो ये 3 ऑप्शन है. अब आपको फ्रेंड्स इन नेक्स्ट 3 मिनट्स आपको ये बताना है कि ये जेंटलमैन ने क्या करना चाहिए. पूरा 100% इक्विटी $300 मिलियन की अपनी जेब से डालनी चाहिए, या फिर 150 अपनी जेब से डालें और दूसरा 150 अपने फ्रेंड्स को बोले डालने के लिए, या फिर तीसरा उसको लोन करके करें. डेट इक्विटी रेशियो 2:1, यानी कि $100 मिलियन अपनी जेब से डालें और बाकी का $200 मिलियन किसी बैंक से
लोन ले लें। तो ये 3 ऑप्शंस हैं। अब आपको अगले 3 मिनट में बताना है कि आपके हिसाब से इन्होंने क्या करना चाहिए, कौन से ऑप्शन पे जाना चाहिए, पहले पे जाना चाहिए या दूसरे पे जाना चाहिए या तीसरे पे जाना चाहिए। और खाली आंसर नहीं देना है, आपको उसका रीजन भी देना है। एंड दैट इज फॉर ऑल ऑफ यू टू कम बैक नाउ।